Assalamualaikum students. Today in the course of positive psychology, we will learn emotional intelligence. We will learn how to measure the emotional intelligence and how to improve emotional intelligence of an individual in different domain of life. Measuring emotional intelligence, there are various kind of scales, questionnaire through which you can measure or assess the emotional intelligence of an individual. The emotional awareness scale is one kind of scale. Professional can use it for research purpose or any other kind of purpose. Respondents are asked to describe their feelings about various systems, and then these protocols are coded according to differentiation in the feeling language. So here, person can report his feeling related to variety of things, and information are recorded according to that. So recorded information will further explain the differentiation the feeling language. So another kind of scale, multi-factor emotional intelligence scale, that comprises of 12 ability measures that are divided into 4 branches reflecting the mode of emotional intelligence. So this questionnaire will exactly help emotional intelligence in 4 branches as we have studied in the module of emotional intelligence. तो वो जो 4 branches हमने पढ़ी है ना, उन्हीं को लेकर ये 12 जो है different abilities आपकी measure करेगा. Emotional intelligence scale by Mehta and Singh, that is another scale through which you can assess the level of emotional intelligence of an individual. तो ये तो वो 3 मैंने सिर्फ यहाँ पर mention किए हैं. इसके अलावा भी बहुत से emotional intelligence के scale हैं, आप उसको easily सर्च कर सकते हैं. और लेकिन ये आपको जो है वो देखना होगा कि दैट स्केल इज स्टैंडर्डाइज्ड और नॉट, कि उसकी जो वैलिडिटी एबिलिटी को देखकर आप कोई भी इमोशनल इंटेलिजेंस का एक स्केल जो है वो सिलेक्ट करके उसे रिसर्च पर्पस के लिए भी या क्लिनिकल सेटिंग में या एजुकेशनल सेटिंग में कहीं आप उसको यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. इंटरवेंशन टू इंप्रूव इमोशनल इंटेलिजेंस. नाउ वी विल लर्न हाउ टू इंप्रूव इमोशनल इंटेलिजेंस इन डिफरेंट डोमेन ऑफ लाइफ. Intervention in education. School-based program can cultivate emotional intelligence in children. Emotional intelligence-based curricula focused on self-awareness, managing feeling, decision-making, managing stress, personal responsibility, self-concept, empathy, communication, group dynamics, and conflict resolution. So, school-based activities can strengthen or cultivate or increase emotional intelligence in school children. Emotional intelligence को curriculum में अगर आप उसको इंक्लूड करें तो ये आपकी डिफरेंट एबिलिटीज को जो है वो स्ट्रेंथन कर सकता है. जैसे सेल्फ अवेयरनेस है, पर्सन को इस एक्टिविटीज ऐसी स्टूडेंट्स के लिए हो जिनके थ्रू पर्सन जो है उसमें सेल्फ अवेयरनेस डेवलप हो सके. इस तरह के क्यूरिकुलम में हो जैसे एक्टिविटीज, उसको पता हो कि वो कौन है क्या है. जब तक पर्सन को अपना पता नहीं होता, वो अपने सेल्फ से अवेयर नहीं होता, ही और शी कैन नॉट परफॉर्म वेल. तो उसकी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए किया जा सकता है. फिर फीलिंग्स को उसने कैसे मैनेज करना, अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना, उन एक्टिविटीज के थ्रू उसको मैनेजमेंट लर्न करवाई जा सकती है. उसकी फीलिंग्स को पॉजिटिव किया जा सकता है. डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर्सन में ऐसी एक्टिविटीज है, लर्निंग एक्टिविटीज है, क्यूरिकुलम बेस्ड एक्टिविटीज है. ये पर्सन एक कोर्स भी वो बच्चा पढ़ रहा है स्टूडेंट, और उसके साथ वो एक्टिविटीज के थ्रू मैनेजमेंट सीख रहा. तो डिसीजन मेकिंग, how to decide something, what kind of decision will be suitable for a person, कोई उसके स्पेसिफिक एबिलिटी से रिलेटेड. जैसे ये इस तरह की एक्टिविटीज कैरियर डिसीजन में भी बहुत हेल्प आउट करती है कि स्टूडेंट जो है वो कैरियर से रिलेटेड भी डिसाइड कुछ नहीं कर पाते हैं. इसी तरह स्टूडेंट विल लर्न हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस. उनको डिफरेंट सिचुएशन में स्ट्रेस मैनेजमेंट आ सकती है. पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, they will take more responsibilities. उनकी जो age required responsibilities होती है ना, age appropriate responsibilities की हम बात करेंगे कि उनके age के accordingly जो responsibilities उनको लेनी चाहिए, क्या वो उसको करते हैं. self concept clear हो सकता है, develop होगा, और self concept develop होगा तो यही self concept आगे चलकर उनको help करेगा in appreciating me and others. और वो जो है अपनी life को जो है वो evaluate करेंगे positive way में. यही self concept है उनके academic setting में और उसमें कैरियर चॉइस में बहुत हेल्प करता है, और फिर उन्हें एकेडमिक्स में बहुत हेल्प करता है कि पर्सन जो स्टूडेंट्स अचीवमेंट करते हैं अपनी फील्ड में, अच्छे सीजीपीए के साथ आते हैं, स्किल्ड हो जाते हैं, उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो उसमें रोल प्ले करता है. इसी तरह कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है कि एम्पैथी डेवलप करती
करनी है। कम्युनिकेशन, हाउ टू कम्युनिकेट विद, अपने इमोशन को जब आपने कंट्रोल करना होता है, जब आप दूसरों से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो आपको अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना जरूरी होता है। इसी तरह ग्रुप डायनेमिक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है। डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, उन फ्रेंड्स होते हैं, स्टूडेंट के फ्रेंड्स ग्रुप्स भी बनाए रहते हैं स्टूडेंट्स ने अपने, ये हमारा ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप, स्टडी ग्रुप्स भी होते हैं। तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करना है डिफरेंट ग्रुप्स में, तो उनको फ्रॉम द बिगनिंग दे लर्न हाउ टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट अकर एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ। तो वो फिर अपने ग्रुप्स में और वो जो एसोसिएट करते लोगों से, वहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, देन दे आर एबल टू सॉल्व दैट। तो स्कूल बेस्ड प्रोग्राम इस तरह के हमारे होने चाहिए कि जिनके थ्रू हम इस स्टूडेंट्स को उनके इमोशंस को भी हेल्प आउट करें, उनके को भी देखें कि स्टूडेंट जो है उसमें वैरायटी की स्किल डेवलप होनी चाहिए। मैनी ऑफ द स्कूल intervention designed to promote emotional intelligence are better classified under the more general social and emotional learning program. So बहुत से school based intervention है जो इस तरह की डिजाइन की गई है कि जिनके थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो स्टूडेंट की जो है वो उसको प्रमोट करने के लिए, कि वो स्पेसिफिकली डिजाइन इस तरह की इंटरवेंशन है कि जिनको किया जाए और उस तरह उनको किया जाए कि उनको सोशल इमोशनल लर्निंग प्रोग्राम के अंडर जो है उसको लेबल किया जाए कि एक पर्सन जो है उसकी सोशल, ये जो इन्होंने प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया सोशल एंड इमोशनल लर्निंग प्रोग्राम, इसके अंडर भी उसको जो है वो क्लासिफाई किया जाए कि पर्सन जो है वो स्टूडेंट जो है वो उन एक्टिविटीज के थ्रू, उन इंटरवेंशन के थ्रू सीखे कि उसकी सोशल इमोशनल लर्निंग कैसे हो रही है। जी सोशल लर्निंग, इमोशनल लर्निंग किस तरह हो रही है, तो उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत एम्फसाइज किया गया ताकि वो पर्सन जो है वो अपनी जब वो डिग्री लेके स्टूडेंट पास हो तो वो उसके इमोशंस को रेगुलेट करना भी उसे आता। सोशल एंड इमोशनल लर्निंग बेस्ड ऑन वेरी स्पेसिफिक सोशल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ट्रेनिंग टू मोर जनरल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज टू very broad programs organized around themes like character development. So social and emotional learning program basically have been designed to meet the specific social goals such as this program aims to strengthen the problem solving skill among the students so that they become able to solve problem they face at different stage of their life, and that is not only confined to the problem solving skill, but this program also develop the skill to resolve the conflict and use different conflict resolution strategies. And then इसकी जो अगर आप इसके ब्रॉडर वे में इसको देखें, इसको और ज्यादा फैला के देखें, तो ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली दैट इज रिलेटेड टू द कैरेक्टर डेवलपमेंट। कि आप ये देखें कि आपने सोशल इमोशनल लर्निंग जो है वो उसमें उस प्रोग्राम को लेकर चलें। स्पेसिफिक सोशल गोल जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हुई, वहां से पर्सन की एबिलिटी डेवलप होगी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की, और फिर ये ब्रॉड होते होता था करेक्टर डेवलपमेंट के, एक पर्सन जो है उसकी एक करेक्टर बिल्डिंग, उसकी पर्सनालिटी ये पूरी जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो ये प्रोग्राम जो है ये एजुकेशन सेटिंग में हमारे स्टूडेंट्स की जो है वो उनकी डिफरेंट एबिलिटीज को डेवलप करने में बहुत रोल प्ले करेंगे। स्टूडेंट जो है उसको पता होगा हाउ टू रिलेट विद अदर, हाउ टू मैनेज ऑन इमोशन, हाउ टू रेगुलेट ऑन इमोशन, हाउ टू make relationships, how to resolve the problem, interpersonal problem as well, how to resolve the conflict at any stage, और हाउ टू डेवलप और पॉलिश ऑन पर्सनालिटी। तो अपनी पर्सनालिटी हैबिट्स कैरेक्टरिस्टिक्स से डेवलप करना है, किस तरीके से उसको यूटिलाइज करना है, तो ये एक पूरी कैरेक्टर डेवलपमेंट की तरफ बात जाती है। Another well-known emotional intelligence curriculum is called self science that begin with 3 assumptions. So ये self science है, ये एक और curriculum है जो इमोशनल इंटेलिजेंस को इंक्रीज करता है, स्ट्रेंथन करता है। 3 assumptions के साथ इसको स्टार्ट किया जाता है। There is no thinking, the more conscious one is of what one is experiencing, the more learning is possible and self knowledge is integral to learning. अब ये कहते हैं कि there is no thinking, कि यहाँ पर जो है वो कोई ऐसी सोच नहीं है, बल्कि पर्सन जो है वो क्या जो एक्सपीरियंस क्या कर रहा है, that is more important। के जो बहुत कॉन्शियस जो चीज है वो ये कि पर्सन एक्सपीरियंस क्या कर रहा है, और जो लर्निंग है वो पॉसिबल है, ज्यादा लर्न पर्सन कर सकता है, और सेल्फ नॉलेज है वो लर्निंग का इम्पोर्टेंट पार्ट। तो इन 3 चीजों को लेकर ये सेल्फ साइंस को लेकर चले हैं कि भाई आप ये सोचे ना, बल्कि ये ज्यादा इससे अवेयर हो कि एक्सपीरियंस क्या कर रहे हैं, सीख क्या रहे हैं, किस तरह पॉसिबल है सीखना, और सेल्फ नॉलेज जो है वो बहुत जरूरी है अगर आप लर्न करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। फाइनली मैनी इमोशनल इंटेलिजेंस इंटरवेंशन फॉर स्कूल चिल्ड्रन टेक
place within other more specific prevention program। और स्टूडेंट्स में इंटरवेंशन जो है उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए, डेवलप करने के लिए बहुत सी ऐसे स्कूल चिल्ड्रन के लिए इंटरवेंशंस हैं डिफरेंट स्पेसिफिक प्रिवेंशन प्रोग्राम के साथ। उसको जो है वो उसको किया जा रहा है ताकि स्कूल चिल्ड्रन जो है उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतर हो। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट क्रिएटिवली प्रोग्राम गोल्स इंक्लूड, फिर एक और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएटिवली प्रोग्राम है जो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए है। इसमें क्या चीजें इंक्लूड है? इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ द डिफरेंट चॉइसेस अवेलेबल टू चिल्ड्रन फॉर डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट्स। दिस गोज इफ अ पर्सन हैज टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। सो व्हाट हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑप्शंस or choices are available through which a person can resolve the specific conflict. So whether students are aware of all those choices and options available to them or not। तो इसमें ये होता है कि सबसे पहले आपने बच्चों को अवेयर करना होता है, अवेयरनेस देनी होती है कि भाई ये choices हैं आपके पास, ऑप्शन है जिनके थ्रू आप अपने कॉन्फ्लिक्ट को डील कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। डेवलपिंग स्किल्स फॉर मेकिंग दीज चॉइसेस एंड देन स्टूडेंट आर लर्न हाउ टू मेक चॉइसेस। जैसे मेरे पास अगर 2-3 चॉइस हैं और मैंने चॉइस करनी है, फैसला करना है ना एक, तो कैसे करना है? अगर आपको मैं कहूँगा भाई ये 2 ऑप्शन है, आप बता दें क्या करना है, जो भी आपका डिसीजन हो मुझे बता दें, देन यू हैव टू चूज वन थिंग। तो अब आपके जो है वो चॉइसेस हैं उसको करना कैसे, कौन सी बेस्ट ऑप्शन होगी, कौन सी बेस्ट चॉइस है, ये भी इसके लिए स्किल रिक्वायर्ड होती है और ये प्रोग्राम जो है इस स्किल को भी डेवलप करता है। देन एनकरेजिंग चिल्ड्रन रिस्पेक्ट फॉर देयर ओन कल्चर बैकग्राउंड एंड द बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट्स आर आल्सो टॉट हाउ टू गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स एंड ओन कल्चर एज वेल। जैसे आपका अपना एक कल्चर होता है, आप भी देखिए स्टूडेंट्स डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे, तो आपने अपने कल्चर बैकग्राउंड को भी एक रिस्पेक्ट देनी है और आपने दूसरों को भी देनी है। सपोज अगर आप किसी ऐसी एनवायरमेंट है जहाँ मल्टीकल्चर होता है ना, तो वहां पर इस तरह के इश्यूज जो है होते हैं, राइज होते हैं कि जहाँ पर डिफरेंट कल्चर के होते हैं। जैसे सपोज अगर लंदन है, लंदन के स्कूल में वहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी हैं, इंडियन भी हैं, बांग्लादेश के भी हैं, फिर लंदन के अपने भी वहाँ के हैं, कोई अमेरिकन होगा, चाइना का हो सकता है। तो डिफरेंट स्टूडेंट्स एक क्लास में अगर होते हैं तो उनको अपने जो डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड है उनको उनका भी ख्याल करना है, वैल्यू देनी है और इसके साथ उन्होंने दूसरे कल्चर के साथ के लोगों, स्टूडेंट बच्चे जो हैं उनके साथ भी एक बड़े एक रिस्पेक्ट के साथ उनसे रिलेट करना है। इसी तरह पाकिस्तान में अगर देखें तो कोई ऐसा सिटी जैसे कराची है, वहां चले जाएं तो वहां आपको डिफरेंट कम्युनिटी के लोग, 4 प्रोविंसेस के, 5 प्रोविंसेस के लोग आपको नजर आएंगे। आपको बलूचिस्तान के भी नजर आएंगे, केपी के भी नजर आएंगे, पंजाब के भी नजर आएंगे, सिंध के भी और गिलगित-बल्तिस्तान के भी लोग नजर आएंगे। तो वहां पर अगर एजुकेशनल सेटअप में डिफरेंट प्रोविंसेस के स्टूडेंट्स जो है पढ़ रहे हैं तो उन्होंने एक दूसरे को कैसे टॉलरेट करना है, एक दूसरे का ख्याल करना, अपने कल्चर को भी वैल्यू देनी है और दूसरे के कल्चर को भी वैल्यू देनी, किसी को डिग्रेड नहीं करना, किसी को हर्ट नहीं करना। तो इस तरह की जो एक एटीट्यूड बिल्डिंग है वो भी इस प्रोग्राम के तहत जो है डेवलप किया जाता है। टीचिंग चिल्ड्रन हाउ टू आइडेंटिफाई एंड स्टैंड अगेंस्ट प्रेजुडिस, और फिर स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि ये भी लर्न करवाया जाता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रेजुडिस, के तो तासुब या कोई बायसनेस कुछ इस तरह की है तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट प्रॉपर्ली एंड आल्सो यू हैव टू स्टैंड अगेंस्ट दैट प्रेजुडिस। के जैसे अगर एक कल्चर है वहां पर डिफरेंट कंट्रीज के बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं, अगर एक को टारगेट किया जा रहा है, 2 को, तो बच्चों ने उसको आइडेंटिफाई भी करना है और उसके खिलाफ जो है वो वॉइस रेज करनी, आवाज उठानी, स्टैंड लेना कि भाई हम ये बायसनेस जो है ये गलत है और हमने किसी भी किस्म की प्रेजुडिस जो है हमने उसको यहाँ पर नहीं एक्सेप्ट नहीं करना। एंड इंक्रीजिंग चिल्ड्रन अवेयरनेस ऑफ देयर रोल इन क्रिएटिंग अ मोर पीसफुल वर्ल्ड एंड नाउ चिल्ड्रन आर आल्सो टॉट एंड अवेयर हाउ टू कंट्रीब्यूट टू फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, कि आपकी पीसफुल वर्ल्ड हो, अमन हो, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे से लड़े झगड़े ना, नफरत ना करें, टॉलरेंस होनी चाहिए। मतलब एक दूसरे के रिलीजन, एक दूसरे के फिरके, जैसे बहुत सी वेरिएशन है हमारे दरमियान, रिलीजन का डिफरेंस है, फिरकों का फर्क होता है, फिर हमारे अपनी कास्ट का फर्क होता है, तो हमने इन तमाम डिफरेंसेस के साथ एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी, अपनी दुनिया को, अपना जो इलाका है, एरिया, इन सबको हमने पीसफुल बनाना है। तो स्टूडेंट्स के अंदर इस तरह की एबिलिटीज जो डेवलप की जाए तो उन्हें बाकायदा अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। और अगर आप खुद देखें कि अगर ये सारी जो है वो इस तरह की अवेयरनेस अगर स्टूडेंट्स में हो तो स्टूडेंट्स जो है वो अपनी एकेडमिक्स में कितने प्रोडक्टिव होंगे और कितने उनमें एक यूनिटी होगी और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे और उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेवलप होगा और वो एक अच्छे इंसान के तौर पर जो है वो सामने आएंगे।
Intervention to improve emotional intelligence. Now we will learn how to improve emotional intelligence in different domains of life. Students receive experiences designed to promote initiative, flexibility, achievement drive, empathy, self-confidence, persuasiveness, networking, self-control and group management. So student जो है वो experience जो उनको होगा वो किस में होगा कि उन्होंने initiative कैसे लेना है. जैसे बहुत से students हैं due to the lack of self-confidence, even they couldn't generate the idea, or if they generate the idea, they are not able to take initiative or to start that or to work upon that design or the idea. तो वो उनकी initiative लेना कैसे, इसको promote करना है. फिर flexibility के साथ कि आप में किस तरीके से flexibility कितनी होनी चाहिए कि किस तरह आप situation के accordingly adapt कर सकते हैं, adjust कर सकते हैं, ideas को mold कर सकते हैं. फिर achievement drive किस तरह की है, चीजों को achieve आपने करना है. एम्पैथी होनी चाहिए आपके अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, परसुएसिवनेस हो आपके अंदर, नेटवर्किंग होनी चाहिए, किस तरह आप लोगों से रिलेट करेंगे, हाउ विल यू कंट्रोल योरसेल्फ एंड हाउ विल यू मैनेज द ग्रुप और लीड द ग्रुप. तो आप दासका एक ग्रुप एक्टिविटी होती है ना, तो एक लीडर होता है, बाकी सब ग्रुप मेंबर्स होते हैं, तो आपने उस ग्रुप को कैसे मैनेज करना है, किस तरह लेकर चलना है. तो ये सारी एबिलिटीज जो है वो स्टूडेंट्स में होनी चाहिए और वो स्टूडेंट्स को उसमें एक्सपीरियंस इन चीजों को करता है, उसको सिखाया जाता है और वो इंफॉर्मेशन रिसीव भी करता है. कम्युनिकेशन एंड इमोशन रिलेटेड स्किल्स आल्सो आर इंक्रीजिंगली बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इनटू फिजिशियन ट्रेनिंग. फिजिशियंस की ट्रेनिंग है तो डॉक्टर्स की भी ट्रेनिंग है, तो वहां भी कम्युनिकेशन और इमोशन रिलेटेड स्किल्स डेवलप की जाती हैं कि किस तरीके से आप जो है वो लोगों से रिलेट करेंगे, आप किस तरह पेशेंट्स को हैंडल करेंगे, उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करेंगे, उनसे कम्युनिकेट कैसे करेंगे और अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करेंगे. The workplace program that most explicitly addresses itself to emotional intelligence is the Emotional Competency Training Program at American Express Financial Advisor. तो ये भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है. इस तरह के प्रोग्राम्स में इन्होंने वर्क प्लेस में इमोशनल इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए, इमोशनल कॉम्पिटेंसी डेवलप करने के लिए इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया है और के लोग जो हैं वो किस तरीके से इमोशनली इंटेलिजेंट हो सकते हैं वर्क प्लेस पर. तो वर्क प्लेस पर होंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है. द गोल ऑफ द प्रोग्राम इज टू असिस्ट मैनेजर्स इन बिकमिंग इमोशनल कोचेस फॉर देयर एम्प्लॉइज. तो यहाँ पर स्पेशली जो मैनेजर्स होते हैं दे आर टॉट हाउ टू बी द इमोशनल कोचेस ऑफ देयर एम्प्लॉइज के जो उनके अंडर स्टाफ काम कर रहा है, तो वो उनको कैसे मैनेज करेंगे, उनके इमोशंस को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, किस तरह जो है उनके फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करेंगे, अपने इमोशंस को रेगुलेट कैसे करेंगे और उन्हें कैसे सिखाएंगे ताकि उनसे ज्यादा से ज्यादा काम ले सके. क्योंकि देखिए जब एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय की फीलिंग्स और इमोशंस का भी पता होता है और एम्प्लॉयर को पता है कि हाउ टू कंट्रोल ऑन सेल्फ एंड अदर एज वेल, तो वो देखिए उन अपने स्टाफ से बहुत अच्छा वो काम ले सकते हैं. एम्प्लॉयज फिर ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से काम करके देते हैं. The training focuses on the role of emotion in the workplace and gaining an awareness of how one's own emotional reaction and emotions of other affect management practice. So emotions, understanding of emotion is quite essential in making the workplace environment productive and effective for all. तो अब जब emotions की understanding होती है workplace पर और उससे person aware होता है कि how his or her own emotion may influence the performance of another one, तो उसके तो वो भी ज्यादा अच्छे तरीके से उसको रेगुलेट करेगा, अंडरस्टैंड भी करेगा, मैनेज भी करेगा, रेगुलेट भी करेगा. तो वो जो पूरा जो मैनेजमेंट होती है ना उसको इन्फ्लुएंस एक दूसरे के इमोशंस होता है ना, उन लोगों के इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है. तो इमोशंस की अगर जितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और मैनेजमेंट अच्छी होगी तो वो जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस है ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की वो इम्प्रूव होगी. लेकिन अगर इमोशंस जो है उनका कोई कंट्रोल नहीं, नेगेटिव इमोशंस हैं, तो पूरी मैनेजमेंट प्रैक्टिस पर उसका असर पड़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी जो है वो कम होगी. इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है कि बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयड शुड बी अवेयर ऑफ द emotion and should all understand not only own emotion but of each other as well. Students, in this class activity, you are required to generate the strategies to improve the emotional intelligence of the university students. So you have to generate the strategies through which you can help students in improving their emotional intelligence so that they can be productive in all domain of their life. So students, you are being given 20 minutes to do that task.